When I took the Quran in my hand, I just cried. ایک ایسی لڑکی جو مسلمانوں سے دور رہا کرتی تھی، ان سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی. ان کے کچھ مسلم فرینڈز بنتے ہیں، وہ بھی پاکستانی. Belong to Hinduism. مسلمان کے لوگ جو ہے بہت خراب ہوتے ہیں، بہت گندے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو مسلمز کی قوم ہے یہ ٹیررسٹ کے لوگوں سے بلونگ کرتی ہے. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریورڈڈ سٹوری شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. میں نے خود ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اتنا اس ریورڈڈ سٹوری سے سمجھوں گا، سیکھوں گا. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو دوستوں؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت ریورٹڈ سٹوری لایا ہوں. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مریم کی ریورٹڈ سٹوری کے بارے میں. ایک ایسی لڑکی جو سالوں تک مسلمانوں سے بات کری نہیں تھی، ایک ایسی لڑکی جو مسلمانوں سے دور رہا کرتی تھی، ان سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے اسلام قبول کر کہتی ہے، میں نے جب پہلی بار قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا تو میں نے آدھے گھنٹے تک صرف روتی رہی. اللہ اکبر. تو چلو انتظار کس بات کا، آج کے اس ویڈیو میں ہم نکلتے ہیں مریم کے خوبصورت سے کنورٹڈ ٹو اسلام کی سٹوری میں، جو پہلے ہندو تھی. ان کی سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، کیسے قبول کیا، ان کو اسلام میں ایسا کیا دکھا، ان کو اسلام میں ایسا کیا اچھا لگا جو ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، بالکل بھی اسکپ مت کرنا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ اسلام کے بارے میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور سیکھیں گے. اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک قرآن کے نصیحت سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کرتی ہیں. ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے. یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے. My name is Mariam. I come from India. I belong to Hinduism and not a very practicing family, not so religious. Religion was always a confusion and just for the sake of doing it, we used to do it. But yes, they are very rigid in their belief, but they are not practicing. The place from where I come from, although there were Muslims there, but whole 23 years there, I never actually interacted with them until I was here in UAE, because that is what I was taught from childhood, that they are not good people. Terrorism is related to them. They are terrorists. They are bad. Stay away from them. But then I used to work in Barclays over here, and I had Muslim friends, Pakistani friends, and they were very good. And that was the time that I realized these are really nice people. It was their nice behavior that first attracted me towards the people, not to the religion. Still, I'm not getting to the religion, just the people. Not people related to a specific country, but people related to Islam. This was what actually attracted me, that how come they are so nice, they are so kind, they are so helping. That was the first time I started, actually knowing about Islam. When you go to these Islamic centers, there are so many books lying there with the basic questions that you have in mind about Islam or God or the Creator. I started picking up those books. I started searching online, and that is how it's like for 1 year, I think I had 1 year, before accepting Islam. 1 year I had studied it, not the Quran, only from the online or the Googling and all that. See, it has just made me more strong. As a person, it has just made me more strong. And as I said, I'm learning. I don't have that much knowledge, but I'm learning. Before that, it was always like, oh, okay, I have my parents, I have that car, I have so much and so much money. But when everything, it's like Allah takes away everything from you to show that, okay, now what are you going to do? I have taken everything from you. I think that Allah had put that strength in me at that point of time, that I will not step back no matter what. When I took the Quran in my hand, I literally, even if now I say my hands shiver, it's like I cried and cried and cried holding it. I just cried. I cried for, I don't know, more than half an hour. I just kept crying. There are times in your life when you will have to beg in front of your Creator. You will have to fall. He will make you fall so that you beg in front of Him. There will come a time like that where all your ego and all your strength and power and money will fail. And I think that realization happened after accepting Islam. بہت ہی خوبصورت ریورٹڈ سٹوری تھی ان کی، جیسا کہ آپ نے انگلش میں سنا. چلو ہم اس کو اور بھی اچھے سے تھوڑا
समझने की कोशिश करते हैं अपनी लैंग्वेज में। इनका नाम है मरियम, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी जो हिंदुइज्म को सीरियसली नहीं लेते थे, बस ये एक शक की निगाह से उसको फॉलो करते थे। लाइक वो भी फॉलो कर रहे हैं तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, तो उस तरह बस हम अपने हिंदुइज्म के ईमान पर सख्ती पर थे, लेकिन हमने कभी हिंदुइज्म को सही से प्रैक्टिस नहीं करते थे। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बस हिंदुइज्म में ही नहीं है, ये हम मुसलमानों में भी है। हम जो है अपने रिलीजन को सख्ती से फॉलो नहीं करते, बस दिखावे के लिए। मतलब जब कभी कॉलेज गए तो वहाँ पे बुर्का पहन लिया, जब कहीं बाहर गए तो वहाँ पे बुर्का पहन लिया, जब शादियां आए तो नहीं पहना, तो उसी तरह। और ये जिस मोहल्ले में रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने 23 इयर्स की लाइफ में कभी भी उनसे इंटरैक्ट नहीं किया, कभी भी मुसलमानों से बातचीत करने की, उनसे मिलने जुलने की कभी कोशिश ही नहीं की, जब तक ये यूएई में चले नहीं गए। तो अभी मैं सामने जो बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे एज ए मुस्लिम हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जब छोटी बच्ची थी तो उस वक्त से ही इनको जो है ऐसा ट्रीट किया जाता था इनके घर में कि मुसलमान के लोग जो है बहुत खराब होते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं, और ये जो मुस्लिम्स की कौम है ये टेररिस्ट के लोगों से बिलोंग करती है। मतलब इनके दिमाग से बचपन से ही मुसलमानों को लेकर बैड इमेज क्रिएट कर दिया गया था, तो उसको लेकर ये कभी भी मुसलमानों से इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे ये समझना जरूरी है एज ए मुस्लिम, एज ए हिंदू, जितने भी जो भी हैं, कि कैसे लोगों के अंदर मुसलमानों को लेकर कैसी नफरत भरी हुई है, जिन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मुसलमान कैसे हैं, जिन्होंने कभी समझने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ से शुरू होती है इनकी हिदायत की घड़ी। जब ये बार्कले में अपने जॉब करने के लिए गई तो वहाँ पे इनके कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स बनते हैं, वो भी पाकिस्तानी, और वो लोग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए, वो इनको बहुत ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर, उनका बात करने का तरीका, उनका सलूक करने का तरीका इनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हमें यहाँ पे एक बात मालूम होती है, जब आप किसी चीज का एक्सपीरियंस किए ही नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा कि वो चीज कैसी है। बस किसी ने उसके बारे में बुरा बोला तो आप भी उसी के बारे में बुरा बोलने लग जाते हो। इनके जो वो पाकिस्तानी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनके बिहेवियर, उनका रहन सहन, उनका लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनका काइंडनेस, उनका हेल्पिंग नेचर इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो उस वक्त ये जो मरियम है ये उन लोगों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हुई, तो इनको मालूम हुआ कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे जो है ये इस्लाम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये जाते हैं इस्लामिक सेंटर्स जहाँ पे इस्लाम के रिलेटेड बहुत सारे किताबें होती हैं, जिनके अंदर हमें एक नॉर्मल जो है बेसिक्स जो है समझ में आता है कि जो है गॉड कौन है, क्रिएटर कौन है, अल्लाह कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है। तो ये सब जो है बेसिक जो है चीजें मालूम होती हैं इस्लाम के रिलेटेड। तो वहाँ पे जो है कुछ किताबें पढ़ती हैं, 1 साल तक जो है किताबों से इस्लाम को थोड़ा बहुत समझा और जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी, तो इनको थोड़ा समझ में आया कि ये सब चीजें क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अभी तक कुरान को छुआ तक नहीं था, कुरान को पढ़ा नहीं था। ये बस ऐसे ही इस्लामिक बुक सेंटर से जो है किताबें पढ़ती थी, ऑनलाइन गूगल करती थी, बस ये अभी तक इन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे एक इतनी बड़ी बात, इतनी अच्छी बात बोलती है जो दुनिया के हर एक इंसान को समझना जरूरी है। ये जो मरियम है एक किताबों को पढ़ने से पहले ये समझती थी कि मेरे पास तो अच्छी फैमिली है, मेरे पास कारें हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ये है वो है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ हूँ इस तरह। ये जब इस्लामिक किताबों को पढ़ी तो उसके अंदर जो है समझ में आया कि अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि ये जो भी चीजें मैंने आपको दी हैं वो सब कुछ एक दिन छीन लूंगा मैं, आपकी जान माल सब कुछ अब मेरे कब्जे में है, मेरे कुदरत में है। आपका जान, आपका माल, जो कुछ भी मैंने आपको दिया है वो सब कुछ मैंने आपको दिया है, मेरी कुदरत से दिया है, तो मैं सब कुछ वो छीन लूंगा। उसके बाद आप क्या करोगे? आपके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है। हमारे अंदर एक रूह है जो ये सब कुछ करा रही है। अभी जो मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ, ये मेरी एक रूह है। तो ये रूह की वजह से मैं जो है अपने हाथों को एक्शन कर रहा हूँ। मैं आपको बोलने की मेरे अंदर ताकत है, आपको देखने की ताकत है कैमरे के अंदर, मैं आपसे जो है इंटरैक्ट कर रहा हूँ। बस मेरे अंदर से जब ये रूह निकल जाएगी तो ना मेरे हाथ काम करेंगे, ना आंख, ना मुंह, ना जबान, कुछ भी नहीं है भाई। ये अल्लाह के कुदरत में है, अल्लाह के कब्जे में है। जब ये रूह निकल जाए तो बस खत्म, इंसान की जिंदगी खत्म।
हमारी रूह जो भी है रूह ही है भाई। यहाँ पे ये बात इनको समझ में आती है, तो ये बात हर एक इंसान को समझने की जरूरत है। क्या करोगे भाई दुनिया का, क्या करोगे माल दौलत का, कारों का, क्या करोगे? हाँ बस एक रूह है, रूह निकल गई तो हाँ आपकी पूरी अय्याशी लग्जरी जो भी है, पूरी दुनिया सात जमीन सात आसमान सब भी तुम्हारे पास है। अगर आपसे रूह निकल गई तो सब कुछ अल्लाह का। तो घमंड किस बात का दोस्तों, घमंड किस बात का? यहाँ पे ये बोलती हैं कि उस वक्त मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी कि मैं ये बात को समझ गई और फिर उसके बाद मुझे कोई भी रोक नहीं पाया, मैं उस बात से पीछे नहीं हटी, इस्लाम से पीछे नहीं हटी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। देखा दोस्तों आपने किन किन तरीकों से, मैंने कितने रिवर्टेड स्टोरीज को समझाया है, कवर किया है, कि हमने देखा कैसे कैसे लोग किस किस छोटे छोटे जरिए से इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी कंट्रोवर्शियल बात, इतनी, क्या आपने कभी सोचा था? देखने के लिए तो ये छोटी सी बात हमें लग रही है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है समझने के लिए। ये हर एक इंसान समझ नहीं सकता। जिन्होंने ये बात बोला कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर से रूह निकल गई तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी है वो सब कुछ बेकार है। आपके पास आज है तो वो किसी और का हो जाएगा कल के दिन जब आपके पास रूह नहीं होगी। तो ये बात समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो अल्लाह अकबर, इतनी समझदारी वाली बात, इतनी हार्ड बात इनको समझ गई। उसके बाद क्या होना था, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। ये जब पहली बार कुरान मजीद को हाथ में पकड़ा तो ये बोलती हैं कि मैंने आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक बस रोती रही। और ये बात ये जब बोल रही हैं तो उस वक्त भी इनके आंखों में आंसू है, पानी है। आप देख सकते हो कि इनके अंदर कितनी तड़प है, कितना दर्द है इस्लाम को लेकर। ये कैसे समझ गई उस बात को, ये समझ ही ना, तो उसको लेकर इनके अंदर दो दर्द है, जो इमोशन है वो दिखा रही है ना, वो प्योर है, वो प्योर है, हमें दिख रहा है और समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। दोस्तों यहाँ पे एक और एक बात बहुत ही समझदार वाली बात बोलती है, जो हमें समझना जरूर है। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात बोलती हैं। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनको और एक बात ये समझ में आई, वो बात ये है कि आपके ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप खुद क्रिएटर के पास, अल्लाह के पास चल कर जाओगे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे सेहत दे दे, ये हो गया वो हो गया। आप खुद जो है चल कर जाओगे। आप सोचते हो कि ऐसा वक्त मेरे ऊपर कभी भी नहीं आएगा, वो वक्त जरूर आएगा। अल्लाह ताला खुद आपके ऊपर ऐसा वक्त नाजिल करेगा, ऐसा वक्त जो है आपके ऊपर डालेगा, ऐसे हालात आपके ऊपर डालेगा कि आप खुद अल्लाह के सामने नील डाउन होंगी, आप झुकेंगी, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे कि अल्लाह मेरा फलाना काम है, मुझे माफ कर दे, मुझे, मैंने ऐसी गलती कर दिया, मुझे ये हो गया वो हो गया, मुझे सेहत दे। ऐसा वक्त जो है अल्लाह ताला आपके ऊपर खुद लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंसर जैसी बीमारी ले लो यार, वो बीमारी ऐसी है कि आप जो है खुद जो है माफी मांगोगे अपनी जिंदगी में, अपने जो भी करतूते किए हैं, आप खुद अल्लाह के सामने माफी मांगेंगे, मुझे सेहत दे दे। उस वक्त आप जिस बात पर घमंड करते थे, आपकी जो लग्जरी लाइफ, पैसा, पावर जो भी है, वो उस वक्त कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ कुछ भी काम नहीं आएगा। तो वो वक्त अल्लाह ताला खुद आपके ऊपर लाएगा। तो ये बात जो है उनको इस्लाम कबूल करने के बाद मालूम हुई। अल्लाह अकबर। ये बात हमें भी समझना जरूर है। हम दोस्तों अब क्या कर सकते हो, अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते हो भाई? आप ऐसी बीमारी अल्लाह ताला ने डाल दी कि आपका पावर, पैसा, जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ आप लुटाने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको वो सेहत, वो लाइफ नहीं मिलने वाली। तो फिर क्या भाई, किस बात पर घमंड करते हो भाई? इस बात पर घमंड? जाओ भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने सजदा करो, सर झुकाओ। जिसने तुम्हें बनाया, उसने सिर्फ बनाया आपको जो है उसकी इबादत के लिए। आप यहाँ पे दुनिया के अंदर आकर उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को समझने की तौफीक दे। मुझे और आपको अल्लाह के सामने 5 वक्त तकबीर उला के साथ सजदा करने की तौफीक दे, अल्लाह से मांगने की तौफीक दे, शुक्रगुजारी करने की तौफीक दे। हाँ दोस्तों, अल्लाह अकबर। ये बात बहुत बड़ी है। ये बात दुनिया के हर एक मुसलमान, हर एक इंसान को समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात समझ गए तो इस दुनिया के अंदर तो कोई जो है गैर मजहब वाला बचता ही नहीं है। सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, सबको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो लास्ट 2 बातें इन्होंने बताई जो कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यहाँ तक आपने देख लिया होगा, तो मुझे लगता है कि ये रिवॉर्डेड स्टोरी शायद अल्लाह ताला किसी ना किसी को हिदायत का जरिया भी बना सकते हैं। बेशक अल्लाह जाने। अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह के लिए
یہ بات کون سی بھی بڑی نہیں ہے. تو خیر باقی کچھ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اس ریورٹڈ سٹوری سے تھوڑا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے, اپنے بیہیویئر کو, اپنے کیریکٹر کو, کائنڈ نیچر کیسا رکھنا ہے. تو اس سے جو ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس سے لوگ جو ہے آپ کو پسند کرتے ہیں. جو جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں اتنا زیادہ اللہ آپ کو اوپر لیتے جاتے ہیں. آپ جو ہے اکڑ کر چلیں گے, بڑا بننے کی کوشش کریں گے. بڑا بننے کی ذات تو صرف اکیلے اللہ کی ہے, اکڑنے کی ذات, بڑا بننے کی ذات ہے تو وہ اکیلے اللہ کی. ہمیں تو ایک دن فنا ہونے والے ہیں, تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو گھمنڈ کس بات کا دوستوں, تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے اسلام قبول کر لیں. میں ہر ایک ویڈیو میں یہ بولتا ہوں کہ شاید یہ ریورڈ سٹوری ان بچوں کے لیے, ان جو ہے جو بھی مسلمان دوست ہیں ان کو جو ہے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے, ان کا بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے, ان کو مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اللہ بہتر جانے, اللہ اکبر. میں تو اس ریورڈ سٹوری سے میں نے خود ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اتنا اس ریورڈ سٹوری سے سمجھوں گا, سیکھوں گا. اللہ اکبر. تو آپ نے بھی اس ریورڈ سٹوری سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا. تو اس ریورڈ سٹوری کو اپنے دوست سے ضرور شیئر کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا, اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا, اور جو بھی اپنے دل کے اندر ہے کامنٹ میں ضرور بتانا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اور ایک بات میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے چینل کا نیم ریورٹڈ ناؤ کو چینج کر آئی ایم عابد زین میں نے اپنا نام رکھا ہے. تو معلوم نہیں یہ چینل کے اوپر کیسا اثر پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے چینل کے اندر بہت برکت دے, لوگوں کو جو ہے شیئر کرنے کی توفیق دے, اور جو لائک کرنے کی توفیق دے, ہدایت کا ذریعہ بنا, مجھے بھی جو ہے ہدایت دے. تو میرے چینل پہ اسی طرح کے ریورٹڈ سٹوریز اور اسلام کے ریلیٹڈ کانٹینٹ آتا رہتا ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.